Hello all, I Zatin welcomes you all to our YouTube channel A to Z Soft Tech. Here you will get educational videos related to NCERT subjects and technical subjects based on computer science. If you find our videos helpful to you, please like and share the videos, do subscribe the channel and hit the bell icon to get updates about new videos. To get more clarity on the topic, watch the video till the end. Please feel free to post your queries in the comment section just below the video. You can reach to us using our email, WhatsApp and Telegram channel. The link is provided in the description box below the video. You can find our video using hashtag Zatinsir, hashtag A to Z Softtech. Now, let's start with the topic. So next is types of instruction format, which we are going to discuss in our today's lecture. Instruction format means इंस्ट्रक्शन में कौन कौन से पार्ट्स होंगे. इंस्ट्रक्शन में 3 पार्ट होंगे, ऑपकोड, मोड फील्ड और एड्रेस. ओके, जिसमें ऑपकोड का होना कंपलसरी है, मोड का होना कंपलसरी है, एड्रेस का होना कंपलसरी है. तीनों ही पार्ट कंपलसरी है, बट द वेरिएबल इज how many addresses are there. Like we have discussed, add r1 r2 r3. एक इंस्ट्रक्शन है r1 r2 r3 में ऐड करना है, तो ऐड क्या होगा, लाइक r2 प्लस r3 और वैल्यू चली जाएगी r1 में. ओके, एक इंस्ट्रक्शन मैंने पढ़ी ऐड r1 r2. इसमें क्या हो रहा है, r1 और r2 ऐड होगा और वैल्यू किसमें चली जाएगी, r1 में. दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेसर आर्किटेक्चर. So different processors have different architectures, have different types of instruction format. Okay, so जो different type of instruction formats हैं, उनको कैसे classify किया जाएगा, उनको हम classify करते हैं by their address fields. Instruction type जो होती हैं, जो instruction format के जो types हैं, they are classified according to their address fields. Okay, the first one is 3 address instructions. 3 address instructions are those instructions in which there are 3 address fields are there. In which there are 3 address fields. Whether these address fields are memory addresses or processor registers, that doesn't matter at all. The matter is you have 3 locations mentioned in the instruction. Okay. Example is, now see, add R1 comma A comma B. Now this instruction will do what? A plus B moves to R1. Now here A and B can be the processor registers and can be the memory locations. If A and B are the memory locations, then it will be represented like this, M square bracket A. And if A and B are the processor registers, then you can simply write A and B. There is a little bit difference between representing a memory location and a processor register. If you are representing a processor register, then you can write just A, B, C, R1, R2, R3 or any name of the processor register. But if you are using the memory address, then you have to mention M square brackets, and in between the square brackets you have mentioned the location. What is the meaning of M square bracket A? It means the content residing in A, like there is a value in A, like called maybe 500. Okay, another value in B maybe 300. Okay, add R1 AB. अगर आप इसको ऐसा लिखते that R1 implies to A plus B, तो क्या होता, 500 plus 300 that is 800. R1 के अंदर आया था 800. Now, the meaning of this instruction is R1 implies, R1 में वैल्यू किसकी जाएगी, मेमोरी लोकेशन ऑफ 500 मेमोरी लोकेशन पर जो वैल्यू डिसाइड कर रही है वो उठाओ, दैट इज द ऑपरेंड. एंड बी में क्या है 300, तो मेमोरी लोकेशन में देखो 300, जो 300 पर कंटेंट है वो उठाओ, दैट विल बी द ऑपरेंड. उन दोनों ऑपरेंड्स को ऐड करो. मे बी 500 पर x है, 300 पर y है, तो अब रिजल्ट होगा x प्लस वाई. तो अब R1 में क्या आएगा, x प्लस वाई. इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द मोड. इंस्ट्रक्शन तो ये लिखी गई है, इंस्ट्रक्शन में 3 एड्रेस हैं. ओके,
अब यहां से आपको नहीं पता लग रहा कि आपको a+b करना है या ma+mb करना है, ये कौन बताएगा आपको? ये बताएगा मोड फील्ड, दैट यू आर यूजिंग डायरेक्ट मोड और यू आर यूजिंग इनडायरेक्ट मोड। हैव यू रिमेंबर द एड्रेसिंग मोड्स? डायरेक्ट मोड मींस जो एड्रेस पार्ट पे गिवन है वही डायरेक्टली आप इंस्ट्रक्शन में ऐड करोगे, वही आपका ऑपरेंड है। इनडायरेक्ट मोड, जो एड्रेस पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में गिवन है उसके ऊपर, वो मेमोरी लोकेशन है, उसके ऊपर जो मिलेगा दैट इज द ऑपरेंड, आप उस ऑपरेंड को यूज करोगे। ओके, सो अगर आपने ऐड R1 RB, R1 A B लिखा है और आपने ये पार्ट ना लिखकर सीधा आपने लिख दिया R1 implies A+B, वो भी पूरी तरह ठीक है। कुछ भी आपको जबरदस्ती क्रैम करने की, रटने की जरूरत नहीं है, कंसेप्चुअल है सारी चीजें, जस्ट आपको थोड़ा सा समझना है कि किस तरीके से ये काम कर रही हैं। ओके, नाउ इन सेकेंड पार्ट सिमिलरली ऐड R2 C D, जैसा मैंने फर्स्ट टाइप बताया आपको, सिमिलरली ये भी वैसा ही होगा। अगर आप मेमोरी लोकेशन से उठा रहे हो, इट मींस यू आर यूजिंग इनडायरेक्ट मोड, इट मींस यू आर इंप्लीमेंटिंग इनडायरेक्ट मोड। ओके, और अगर आप C+D कर देते सीधा, इट मींस यू आर यूजिंग डायरेक्ट मोड। थर्ड इंस्ट्रक्शन विल बी, जरूरी नहीं है कि ये तीनों इंस्ट्रक्शन आप लिखो। ओके, आप कोई भी दो इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो। एग्जांपल में देयर इज नो नेसेसिटी कि ऐड के साथ R1 AB लिखना है, ऐड R1 R2 R3 लिख सकते हो, ऐड A B C लिख सकते हो, बिकॉज आप एक जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो। अभी तक आपने कुछ भी अपने प्रोसेसर, किसी एक स्पेसिफिक प्रोसेसर की नॉमेनक्लेचर को डिस्क्राइब करना स्टार्ट नहीं किया है। ओके, द थर्ड इंस्ट्रक्शन विल से व्हाट? MUL। नाउ MUL मींस मल्टीप्लाई। ओके, DIV लिख दोगे तो डिवाइड हो जाएगा। It is just representation. Okay, some processors have the multiply instruction like this, and some processor doesn't have the multiply instruction, because multiply is what? Consecutive addition operation, so we can obtain multiplication using addition. So some processors doesn't have the multiplication instruction, just to reduce their instruction set. कुछ instructions जो हम इधर उधर से obtain कर सकते हैं multiple operation से, तो वो इंस्ट्रक्शंस ऐड नहीं, उसके इंस्ट्रक्शन सेट में बाय डिफॉल्ट एडिट नहीं होती। ओके, सो यहां पर क्या इंस्ट्रक्शन आपने दिखाई है? MUL, दैट इज मल्टीप्लाई X, R1, R2। नाउ हियर X इज द मेमोरी लोकेशन which is represented in the notes, that is, it is a memory location, and the value which will be stored on a memory location of X will be R1 multiplied R2. You can simply write X over here. Let X is a processor register, and this processor register will store the value of R1 and R2, both multiplication. Okay, so this is all about your 3 address instructions. Now tell me one thing, इतने ज्यादा एड्रेस यूज करने का एडवांटेज क्या होगा? जितने ज्यादा एड्रेसेस होंगे, इट मींस आप एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में एग्जीक्यूशन करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल, यू हैव 3 एड्रेसेस लाइक 3 रजिस्टर्स R1 R2 R3, और आपको R1 और R2 से वैल्यू लेनी है, R3 में स्टोर करानी है। एक इंस्ट्रक्शन में हो जाएगा सारा काम, ऐड R3 R1 R2, बिकॉज R3 में डेटा स्टोर भी हो रहा है, R1 R2 से डेटा फेच भी हो रहा है और एडिशन भी हो रहा है, सारा काम एक ही इंस्ट्रक्शन में हो गया। सो the larger number of addresses you have in your instructions, the shorter programs you can make. जितने ज्यादा एड्रेसेस आप यूज करोगे उससे उतना ही छोटा प्रोग्राम बनेगा। ओके, ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या होगा? जितने ज्यादा एड्रेसेस आप यूज करोगे उतना ही बड़ा एड्रेस फील्ड हो जाएगा इंस्ट्रक्शन का। इट मींस एड्रेस part of instruction will be longer. Okay, and when address part is longer, it means complete instruction will be longer, और पूरी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए आपको ज्यादा स्पेस चाहिए होगा। सो यू नीड too many bits to specify 3 addresses. नंबर ऑफ बिट्स जो है जिससे आप इंस्ट्रक्शन को स्पेसिफाई करोगे वो आपके पास काफी ज्यादा होंगी। सो एडवांटेज क्या है? प्रोग्राम छोटे बनेंगे, बट डिसएडवांटेज क्या है?
कि जो इंस्ट्रक्शन है उसका साइज काफी बड़ा हो जाएगा, तो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए काफी ज्यादा बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, नाउ सेकंड इज टू एड्रेस इंस्ट्रक्शंस। अब हमने पहली जो पढ़ा कि प्रोग्राम तो छोटे बन रहे हैं बट इंस्ट्रक्शन का साइज काफी बड़ा हो गया है। अच्छा, एक काम करते हैं, प्रोग्राम को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बट इंस्ट्रक्शन का जो साइज है उसको रिड्यूस करना है। तो उस केस में क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन का साइज किससे वेरी कर रहा है, एड्रेस से, तो हमने एक एड्रेस घटाया। अभी 3 एड्रेस थे, अब 2 एड्रेस करते हैं। अभी 3 एड्रेस थे, अब 2 एड्रेस करते हैं। 2 एड्रेस में क्या होगा आपके पास, देखिए कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस आपके पास यहाँ पे आ रही हैं। लेट देयर इज अ प्रोग्राम, this program is of addition and multiplication. This program is of addition and multiplication. Okay, now how it will execute, move r1 comma a, मेमोरी की a लोकेशन से वैल्यू उठाओ और r1 में डाल दो, मूव कर दो। एड r1 कॉमा b, मेमोरी की b लोकेशन से वैल्यू उठाओ और r1 जो रजिस्टर था उसमें भी किसकी वैल्यू आ गई, a की, तो a प्लस b हो जाएगा, रिजल्ट किस में चला जाएगा, ऑटोमेटिकली r1 में। इसमें R1 जो है दैट इज एन एक्यूमुलेटर। आई थिंक यू आर ऑल आर फेमिलियर विद द कांसेप्ट ऑफ एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर इज अ प्रोसेसर रजिस्टर और ऑल्सो नोन एज अ बाय डिफॉल्ट रजिस्टर। अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑपरेंड्स प्रॉपरली जो है डिस्क्राइब नहीं है तो प्रोसेसर बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर को एज अ ऑपरेंड भी यूज करता है एंड ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद उसका रिजल्ट भी बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर में ही स्टोर करा देता है। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्यूमुलेटर। बाय these two instructions अब क्या हुआ आपका a प्लस बी और रिजल्ट कहाँ आ गया, r1 में। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में ये दोनों इंस्ट्रक्शन एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में आ गई थी, एड r1 कॉमा a कॉमा b, एक इंस्ट्रक्शन थी। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन 2 हो गई, इंस्ट्रक्शन का साइज छोटा हो गया बट प्रोग्राम का साइज थोड़ा बड़ा हो गया। प्रोग्राम का साइज, पहले एक इंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम बन गया था, अब 2 इंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम बन गया। पहले 3 एड्रेस थे इंस्ट्रक्शन में, अब 2 एड्रेस आ गए। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस क्लियरली? मूविंग फॉरवर्ड, move r2 comma c, it shows that memory location of c, content at the memory location of c will be moved into r2 register, will be moved into r2 register. Now add r2 comma d। अब r2 में क्या है, c लोकेशन के कंटेंट है और d लोकेशन से कंटेंट उठाओ और डायरेक्टली आप ऐड कर दो किसमें, r2 में। सो अब आपके पास क्या हो गया, a प्लस बी आ गया r1 में, c प्लस डी आ गया आपके पास r2 में, a प्लस बी आ गया r1 में, c प्लस डी आ गया r2 में, एंड यू हैव टू परफॉर्म a प्लस डी मल्टीप्लाइड c प्लस डी। ये इंस्ट्रक्शन थी। यही सेम ऑपरेशन हमने 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में भी किया था, एड r1 ab, एड r2 cd, मल्टीप्लाई r1 r2, मींस a प्लस बी सी प्लस डी और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके स्टोर कहां किया, मेमोरी लोकेशन ऑफ x। ओके, वही सेम जो यहाँ 3 इंस्ट्रक्शन में हुआ है, देखिए यहाँ उसमें ज्यादा इंस्ट्रक्शंस लग रही हैं। r1 में a प्लस बी आ गया, r2 में c प्लस डी आ गया। नाउ यू हैव मेंशन्ड मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन, मल्टीप्लाई r1 कॉमा r2। ओके, it will do what, r1 multiplied r2 and result will be stored in r1 only। ओके, रिजल्ट आ गया r1 में, बट आपको रिजल्ट कहां डालना है, x में। तो अब आप क्या कराओगे, r1 से वैल्यू को x में मूव कराओगे, मूव x कॉमा r1। तो अब आपका जो रिजल्ट है वो मेमोरी की x लोकेशन पर स्टोर हो गया है। ओके, द प्रोग्राम, the previous program was of only 3 instructions, now here the program is of 6 instructions। प्रोग्राम का साइज बढ़ गया है, आपको a प्लस बी इंटू सी प्लस डी ये प्रोग्राम बनाना था। क्लियर हुआ? अब साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन स्मॉल हो गया, जो इंस्ट्रक्शन 3 एड्रेस की थी अब वहां 2 एड्रेस हो गए, तो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए कम बिट की रिक्वायरमेंट है, कम स्पेस चाहिए, बट प्रोग्राम ज्यादा बड़ा हो गया। सो अकॉर्डिंग टू द नीड, आपका प्रोसेसर आप कैसा बनाना चाहते हो, आप उसके हिसाब से उसमें एड्रेसेस पार्ट को इनकलकेट कर सकते हो। 3 एड्रेसेस चाहते हो, 2 एड्रेसेस चाहते हो, 1 एड्रेस और 0 एड्रेस। देयर आर 2 मोर, 1 एड्रेस एंड 0 एड्रेस। वी विल डिस्कस देम राइट नाउ। मूविंग फॉरवर्ड इज 2 एड्रेसेस इंस्ट्रक्शन, हमने अभी डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट इज 1 एड्रेसेस इंस्ट्रक्शन।
वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या होगा, जिसमें इंस्ट्रक्शन में सिर्फ एक ही ऑपरेंड होगा, एक ही लोकेशन मेंशन होगी, उसी लोकेशन पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। पहले हमने किया 3 एड्रेस, फिर 2 एड्रेस, अब एक एड्रेस। एक एड्रेस का मतलब क्या है, देखिए जो है एक एड्रेस का मतलब होता है एक्यूमुलेटर ओनली, दोज इंस्ट्रक्शंस इन विच द सेकंड ऑपरेंड विल बी ओनली द accumulator। accumulator मींस द बाय डिफॉल्ट रजिस्टर, बाय डिफॉल्ट रजिस्टर लाइक आपने ऐड बी लिखा, बी तो एक ही लोकेशन है, दूसरा ऑपरेंड कहां से मिलेगा, दूसरा ऑपरेंड मिलेगा accumulator से। प्रोसेसर उसको अपने आप मान के चलेगा कि हाँ दूसरा तो accumulator है, उसको मेंशन करने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। नाउ सी द एग्जांपल, now this is the example, okay, of the a plus b multiplied c plus d, okay। लोड a, लोड इंस्ट्रक्शन क्या करती है, डेटा ट्रांसफर, मेमोरी की ए लोकेशन से उठाकर कहां डाल देगा, एक्यूमुलेटर, बिकॉज इसमें हमने सिर्फ ए मेंशन किया है। ए का मतलब क्या हुआ, ओनली द मेमोरी लोकेशन ए, ओनली द मेमोरी लोकेशन ए, एंड डेटा विल बी मूव्ड इनटू द एक्यूमुलेटर। सेकंड विल बी ऐड बी, ऐड बी मींस ऐड accumulator plus the content of b, add accumulator plus the content of b, so it will be like accumulator implies to accumulator plus the content of memory b location of memory। now store t, store t any temporary location, accumulator की वैल्यू आप टेम्परेरी लोकेशन पे डालेंगे। अगर आपने ये वाला store t वाला स्टेप नहीं किया, if you haven't performed store t function, then what will happen, when the next operation will be executed, the current value of accumulator will be flushed out, okay। accumulator की वैल्यूज जो हैं वो हर ऑपरेशन के बाद चेंज हो जाती है। सो अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो जिसमें आपने accumulator यूज किया है, सो इट इज एडवाइजेबल, इट इज सजेस्टेड, और आप ये कह सकते हैं दैट इट इज मैंडेटरी टू कैप्चर दैट वैल्यू, ओके। अभी हमने accumulator यूज किया, अब फिर से accumulator यूज करेंगे तो प्रीवियस वैल्यू हट जाएगी, तो उस प्रीवियस वैल्यू को आप कहीं सेव करके रखेंगे। तो आपने एक टेम्परेरी लोकेशन ले ली स्टोर टी, एक्यूमुलेटर की वैल्यू वहां टी पर चली गई। अगेन लोड सी, अब आपने सी लोकेशन से डाटा उठाया, कहां डाला, एक्यूमुलेटर में। ऐड डी, डी लोकेशन का डाटा और एक्यूमुलेटर का डाटा दोनों ऐड हुए, कहां चले गए, एक्यूमुलेटर के अंदर। अब आपके पास एक वैल्यू एक्यूमुलेटर में है, दूसरी वैल्यू कहां पड़ी हुई है, टी लोकेशन पे। यू डिड व्हाट, मल्टीप्लाई टी, मल्टीप्लाई टी, तो ये क्या करेगा, टी लोकेशन पर जो डेटा है वो, that data is multiplied with the content of accumulator and the result will be further stored in the accumulator only। बट हमें रिजल्ट कहां चाहिए था, x लोकेशन पे, सो स्टोर x, स्टोर x का मतलब क्या हुआ, x लोकेशन पर एक डेटा स्टोर करना है, ओके कहां से उठाना है, तो बाय डिफॉल्ट वो कहां से उठाएगा, accumulator से, ओके। सो इन दिस केस वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक आपके पास प्रोसेसर रजिस्टर है जो ऑलरेडी प्रोसेसर को पता है कि कोई भी ऑपरेशन है, सेकंड एड्रेस इसी का चलेगा, सेकंड एड्रेस जो है वो एक्यूमुलेटर ही रहेगा इन एवरी केस। आप सिर्फ एक ही एड्रेस मेंशन कर सकते हो, दैट एड्रेस और द कंटेंट ऑफ दैट एड्रेस एंड एक्यूमुलेटर कंटेंट, ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड, ओके क्लियर। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन जो होती है, दिस कैन बी इंप्लीमेंटेड इन सिंगल एक्यूमुलेटर रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, ओके। जो प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन में बताई थी मैंने 3 तरह की, जो सिंगल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर आप वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हो, ओके। 2 एड्रेस और 3 एड्रेस यूज होते हैं जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में। द थर्ड वन इज स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी इंस्ट्रक्शंस आएंगी, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस। व्हाई, because it is a property of a stack that insertion and deletion, push and pop, both operation takes place on a single end, that is top of stack, and the stack has a property of last in first out, okay। तो जब आपके पास एड्रेस आपको पता है यही है, एक ही है, that is top of stack only, आपको कहीं और से कोई वैल्यू लेनी नहीं है, कहीं और कोई वैल्यू देनी नहीं है, कोई और लोकेशन आपके पास मेंशन ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, कोई एड्रेस आपको देने की जरूरत ही नहीं है, टोटल जो ऑपरेशन है वो स्टैक के ऊपर ही होना है, ओके। पुश करोगे तो भी वो उसी पर्टिकुलर लोकेशन टॉप ऑफ स्टैक पर वैल्यू डालेगा, पॉप करोगे तो वो टॉप ऑफ स्टैक से वैल्यू उठाएगा।
सो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में ही पॉसिबल है. If you are implementing your processor using stack organization, then your instruction set must be of zero address. Okay? If you are implementing your processor using general register organization, then your instruction set may be of 2 address and may be of 3 address in case of general register. And if you are implementing your processor using single accumulator register organization, then you have one address instructions in your instruction format. Clear to everyone? Now see the example of zero address instruction. How it is zero address? Like stack organized computer does not use an address field for instructions. ओके लाइक ऐड है, मल्टीप्लाई है, इस केस में आपको कोई एड्रेस डालने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो क्या ऐड करेगा, क्या मल्टीप्लाई करेगा, कैसे करेगा, वो उसके पास है. ओके कोई भी ऑपरेटर आता है, आपने शायद सी या डेटा स्ट्रक्चर में जब स्टैक इंप्लीमेंटेशन किया होगा तो आपने देखा होगा व्हेन एन ऑपरेटर अकर्स, ओके ऊपर से दो एलिमेंट उठाते थे हम स्टैक से, टॉप ऑफ स्टैक -1 एंड टॉप ऑफ स्टैक एंड टॉप ऑफ स्टैक -1. ऊपर से दो एलिमेंट उठाए, परफॉर्म द ऑपरेशन एंड स्टोर द रिजल्ट ऑन द टॉप ऑफ स्टैक. स्टोर द रिजल्ट ऑन द टॉप ऑफ स्टैक. इट मींस क्या हुआ, आपने सिर्फ ऑपरेटर डाला, दैट इज एडिशन डाला, उसको पता है कि ऊपर से दो एलिमेंट उठाने हैं. नाउ सी पुश ए से वैल्यू उठाकर इंसर्ट करो. कहां करनी है, मींस टॉप ऑफ स्टैक, वो बताने की जरूरत नहीं है. पुश बी उठाए, बी से जो मेमोरी लोकेशन बी है वहां से वैल्यू उठाओ. नाउ इन दिस केस देखिए इसमें MA MB नहीं लिखा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके ए और बी जो है वो लेट आपके पास कुछ लोकेशंस हैं, आपने वहां से वैल्यू उठाई. अगर आप MA MB लिख दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐड, जैसे ही आपने ऐड इंस्ट्रक्शन लिखी, इसमें इस इंस्ट्रक्शन में कोई भी एड्रेस नहीं है. इस इंस्ट्रक्शन ने क्या किया, एडिशन किया, किसका, द अपर टू वैल्यूज इन द स्टैक ओनली. क्लियर? फर्दर पुश सी, पुश डी. अब क्या हुआ, टॉप ऑफ स्टैक पे जब ऐड हुआ तो टॉप ऑफ स्टैक पे क्या था, एडिशन, देन सी, देन डी. अब कितनी वैल्यूज फिल्ड है स्टैक में, 3 वैल्यूज. देन ऐड हुआ, ऊपर की दो वैल्यू उठाई सी और डी, उनको ऐड करके रिजल्ट फिर से टॉप ऑफ स्टैक में डाल दिया. अब स्टैक में कितनी वैल्यूज हैं, 2. ए प्लस बी एक जगह है, सी प्लस डी एक जगह है. ओके नाउ यू हैव डन मल्टीप्लाई. जैसे ही मल्टीप्लाई का ऑपरेटर आया, अब आपने दो वैल्यूज उठाई, अब दो ही वैल्यूज हैं, वो दोनों वैल्यूज उठाई, ए प्लस बी एंड सी प्लस डी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया. जो मल्टीप्लाई किया वो रिजल्ट कहां आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट एट द टॉप ऑफ स्टैक ओनली. जैसे ही रिजल्ट टॉप ऑफ स्टैक पर आया, अब आपने वो रिजल्ट रखना कहां है, यू हैव टू केप दैट रिजल्ट ऑन अ मेमोरी लोकेशन x. सो अब आपने क्या किया, पॉप x. पॉप x मींस x में जो है स्टैक में से पॉप की वैल्यू निकाली और कहां डालनी है, अब आपको x में डालनी है. सो टॉप ऑफ स्टैक टू m ऑफ x. रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगी, टॉप ऑफ स्टैक से वैल्यू निकली और x में चली गई. ओके व्हाई इट इज कॉल्ड जीरो एड्रेस, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी एड्रेस फील्ड इन कंप्यूटेशनल इंस्ट्रक्शंस. जो कंप्यूटेशनल इंस्ट्रक्शंस हैं, कंप्यूटेशनल इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, जिसमें कंप्यूट हो रही है वैल्यू, मैनिपुलेट हो रही है वैल्यू, दैट इज अ कंप्यूटेशन. ओके जो वैल्यू कंप्यूट हो रही है, जो कंप्यूटेशनल इंस्ट्रक्शंस हैं, उनमें कोई एड्रेस गिवन नहीं है. वो ऑपरेशंस कहां हो रहे हैं, स्टैक के ऊपर हो रहे हैं. जो स्टैक में इंप्लीमेंटेशन हो रही है उसमें कोई एड्रेस नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन. ओके हो सकता है क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए, ये दे दिया इस तरह का एक इंस्ट्रक्शंस दे दिया आपको, specify the zero address instructions in this program. How many instructions are zero address instructions? कितनी इंस्ट्रक्शन है इसमें जो जीरो एड्रेस है, देयर आर 3 इंस्ट्रक्शंस दैट आर जीरो एड्रेस. ओके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है जब हायर स्टडीज गेट वगैरह के एग्जाम में, तो वो इस तरह का प्रोग्राम दे देगा और आपसे पूछेगा कौन कौन सी जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन है. क्लियर हुआ? Now another type of instruction is known as RISC instruction. इसको प्रोनाउंस करते हैं रिस्क.
ओके, शॉर्ट फॉर्म होती है RISC। RISC स्टैंड्स फॉर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इंस्ट्रक्शन सेट, इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब आपने बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को एक साथ कलेक्ट करके रखा, दैट इज नोन एज इंस्ट्रक्शन सेट। एवरी प्रोसेसर, एवरी प्रोसेसर, एवरी प्रोसेसर हैज इट्स इंस्ट्रक्शन सेट। हर एक प्रोसेसर का अपना इंस्ट्रक्शन सेट होता है। ओके, दो तरह की क्लासिफिकेशंस हम कर सकते हैं, रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट, reduced instruction set, and second is complex instruction set। reduced instruction set and complex instruction set। ओके, reduced का मतलब क्या होता है? reduced का मतलब कम। reduced instruction set computer means lesser instructions are there। complex instruction set computer means complex instructions are there। complex instructions को implement करना ज्यादा टफ होगा। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन को, जो कम इंस्ट्रक्शंस होंगी उनको इंप्लीमेंट करना इजी होगा। डिफिकल्टी क्या आएगी? रिड्यूस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? आपके पास सिर्फ एडिशन की इंस्ट्रक्शन है, मल्टीप्लिकेशन की नहीं है। तो अब आपको अगर मल्टीप्लिकेशन करना है, इन दैट केस यू हैव टू यूज सबसीक्वेंट एडिशन ऑपरेशंस। ओके, कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस बहुत सारी हैं, हर एक ऑपरेशन के लिए इंस्ट्रक्शन है आपके पास। सो आपका जो साइज ऑफ प्रोग्राम है वो कॉम्प्लेक्स, सिस्क में कम होगा। CISC होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। उस केस में क्या होगा? प्रोग्राम की लेंथ तो स्मॉल हो सकती है बट प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होगी। और रिड्यूस इंस्ट्रक्शन में क्या होगा? नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिमिटेड, आपके पास 10 इंस्ट्रक्शन है, उन्हीं 10 को यूज करके आपको प्रोग्राम्स बनाने हैं। कोई भी ऑपरेशन करना है आपको, वो 10 ही इंस्ट्रक्शन है आपके पास, उन्हीं 10 को यूज कर सकते हो आप हिरा फिरा के। ओके, सो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट में क्या होगा? आपके पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम होंगे एंड यू कैन perform any operations using those instructions। Now, as written over here, it is restricted to use of load and stored instruction when communicating between memory and CPU। जब भी मेमोरी और CPU के बीच में बात होगी तो वो लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शन से ही काम करेगा। ओके, second is all other instructions are executed within registers of CPU without referring the memory। बाकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी एक्सेप्ट लोड एंड स्टोर, वो सब सिर्फ रजिस्टर पे काम करेंगी, सिर्फ प्रोसेसर रजिस्टर पे। सिर्फ लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शंस ऐसी होंगी जो मेमोरी एड्रेस लेंगी। वाई सो? बिकॉज मेमोरी एड्रेस जो होता है वो लॉन्ग होगा, जिससे आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो बड़ी हो जाएगी, इंस्ट्रक्शन का साइज जो है वो बढ़ जाएगा। एंड प्रोसेसर रजिस्टर में जब करोगे तो इंस्ट्रक्शन का साइज कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोग्राम फॉर RISC टाइप CPU कंसिस्ट लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शंस दैट हैव वन मेमोरी एंड वन रजिस्टर एड्रेस। अगर आप RISC टाइप CPU, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट टाइप का CPU ले रहे हो, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट का ले रहे हो, तो क्या होगा? लोड और स्टोर में तो मेमोरी एड्रेस होगा, लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शन में तो मेमोरी एड्रेस होगा, और इसके अलावा एक रजिस्टर होगा। किस पर्टिकुलर लोकेशन से आपको डालना है वो, एक्सेप्ट दैट ओनली वन रजिस्टर विल बी यूज्ड देयर। Computational type instructions have three addresses। Computational means add, subtract, move, add, subtract, multiply, divide, इस तरह की जो instructions होंगी उसमें 3 एड्रेसेस होंगे। Why so? Because प्रोसेसर रजिस्टर यूज कर रहे हो, तो प्रोसेसर रजिस्टर में आप मल्टीपल रजिस्टर्स हैं आपके पास। सो रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट है, इंस्ट्रक्शंस कम है बट लॉन्ग है, इंस्ट्रक्शंस कम है बट इंस्ट्रक्शन की जो लेंथ है वो ज्यादा है, सो दैट यू कैन परफॉर्म एनी टास्क वेरी इजीली। एड ए बी सी, यानी कि B प्लस C को A में स्टोर करा दिया। ओके,
this is a program for reduced instruction set computer. reduced instruction set computer का प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के सिलेबस में नहीं है. डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन reduced instruction set computer एंड complex instruction set computer. ओके, वो डिफरेंसेस मैंने आपको बताए भी हैं, मैं आपको बाद में नोट भी करवा दूंगा. Well, this is all for today. Thank you very much for your patience listening. Please feel free to ask for queries. You can find our contact information in the description box just below the video. Thank you once again. Have a nice day. Thank you.